Prime Minister Narendra Modi spoke to Rajya Sabha chairperson and Vice President of India Jagdeep Dhankar to express his pain over the alleged disrespect shown to his office by some of the suspended MPs who mimicked his style of presiding over the House. Dhankar shared the details of the Prime Minister's conversation with him in a social media post on X. He went on to say that the Prime Minister shared his own experience of having been belittled and insulted. Not just this even, the President tweeted. The President also tweeted in support of Vice President, that is Draupadi Murmu, tweeted in support of Vice President, expressing her anguish and dismay over this mockery. TMC MP Kalyan Banerjee, however, remains defiant and unapologetic. And remember, he's also being backed by TMC Supremo Mamata Banerjee, who refuses to comment on what happened or even condemn, in fact, what her MP did. Listen into the reaction. और मेरे से कहते कि फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा और मेरे से कहते फोन में वार्तालाप दशकों तक. All right, so Prime Minister Modi has condemned the mocking of the Vice President, and even we did see Jagdeep Dhankar himself saying that there has to be limits to how low you can stoop. President Murmu in the latest has expressed her dismay also. She has also posted on the social media platform X. And in the latest, we have now Mamata Banerjee refusing to condemn Kalyan Banerjee's act. Take a listen in. Not said either it is Rajya Sabha or it is Lok Sabha, it's a mock parliament was going on. If he has taken on his shoulder, I'm really helpless. Are you saying Does he really behave like this in the Rajya Sabha? That's my question. Now that's my question. No, I have never intended. Sir. There'll be sin. Either you allow me to speak, otherwise you will. No. Then either you allow me to speak, or then. Now I will tell. I have never any intention to hurt anyone. Dhankar Saab is also in my profession. He is a senior than me. He is also senior advocate. I am also senior advocate. In our profession, we never hurt anyone. I did not intend to do it. But if he is hurt, then I do not know why he is taking it on his shoulder itself. I do not know, because my question is, if he thinks that there is similarity between the behavior of him and myself, then my question is, does he behave in this way in the Rajya Sabha? I have a great respect for Dhankarji. Firstly, he belongs to my profession. Secondly, he was our ex-governor. Thirdly, he is our vice president, he is the chairman. But I did not want to hurt anyone. And it's not, please, it's one type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. I can show you the video. He has done it in the last term in 2014 to 2019 in the Lok Sabha itself. But everyone has taken it as okay. It's not seriously. But if anyone takes it seriously, I am helpless. Sir, Prime Minister called Modi and said that they have been insulting me since 20 years. What is your take on it? But 20 years I am not there. Why he is taking my name? 20 years. So they're demanding an apology. No, 20 years I am not there. Long 20 years. How he can link up any
past incidents with that. Then I did not. No. I didn't. क्यों आप ऐसा बात करते हैं? हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, ये डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो। क्यों आप ऐसा बात करते हैं? हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, ये डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो। टीएमसी सांसद डोला सेन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डोला मैम, कल जिस तरह से कल्याण बनर्जी की मिमिक्री का मामला सामने आया, राहुल गांधी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने सभापति को, वाइस प्रेसिडेंट को कॉल किया, उन्होंने कहा कि मैं तो कई सालों से झेल रहा हूं, और उन्होंने अपोजिशन के जो ये एक्ट था, ये एटीट्यूड था, उस पर भी वीपी से बात की। क्या कहेंगे? हम सिर्फ ये बोलेंगे कि देखिए, ये सब नॉन इश्यू है। जब 2021 में आप की बार 200 पर करने गए थे वो बंगला, तब टीनेजर की तरह ममता जी के ऊपर वो बोले थे, दीदी ओ दीदी, क्या ये पीएम की लायक था? लेकिन ये सब नॉन इश्यू पर हम बात नहीं करते। इश्यू बहुत सीरियस है। मोदी जी की नेतृत्व में इंडिया की सिचुएशन बहुत गहरा है। ये इंटरनेशनली जब क्रूड ऑयल का दाम बहुत कम है, तब भी इधर पेट्रोल डीजल का दाम बहुत बढ़ चुके हैं, गैस के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट 45 ईयर्स में सबसे ज़्यादा है। ये सब सीरियस इशू पर सब प्रॉफिटेबल पीएसयू को बेचा जा रहा है। तो ये सब सीरियस इशू पर हम चाहते हैं कि बीजेपी हट जाए, मोदी जी हट जाए। डोला जी, लेकिन एक और बात, जिस तरह से कल प्रहलाद जोशी ने बात कही कि जो एटीट्यूड था कल्याण बनर्जी का, उन्होंने डिमीन किया है संसद को, उन्होंने वाइस सभापति को डिमीन किया है इस तरह की मिमिक्री करके। लेकिन आप लोग कैसे देखते हैं, बतौर टीएमसी सांसद, आप इस पूरे विषय को किस तरह से देखती हैं? राहुल गांधी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे, और बीजेपी लीडर्स ने बहुत इसका खंडन किया है, बहुत कंडेम किया है इस पूरे एक्ट को। हमने फिर बोलेंगे, ये सब नॉन इश्यू पर हम बात नहीं करते। जब पीएम मोदी जी ने खुद 21 में इलेक्शन कैंपेन में बांग्ला जाके दीदी को बोला था, दीदी ओ दीदी, टीनेजर की तरह, ये आवाज़ देना भी कोई उचित बात नहीं था। जब लास्ट वीक कोई न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देने के टाइम गिरिराज सिंह ने, ऑनरेबल रूरल एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने, पंचायत डेवलपमेंट मिनिस्टर ने ठुमका बताया ममता जी के बारे में, ये भी ठीक बात नहीं है। तो हम ये सब नॉन इश्यू पर बात नहीं करेंगे। इश्यू बहुत गहरा है। इंडिया को बचाने के लिए, हमारा देश को बचाने के लिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया विल टेल द लास्ट वर्ड, एंड यू विल सी इन 2024 लाइक 2021 इन बंगाल, मोदी जी हारेंगे पक्का। तो ये है डोला सेन कल्याण बनर्जी पर और प्रधानमंत्री के वाइस प्रेसिडेंट की से बात करने पर। हर्षद सतवानी फॉर रिपब्लिक टीवी। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एसटी सर, कल्याण बनर्जी की कल मिमिक्री वाला मामला, राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे, बीजेपी कह रही है कि तमाम सारे अपोजिशन लीडर्स को माफ़ी मांगनी चाहिए इस कृत्य पे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जगदीप धनखड़ को डायल किया, उन्होंने बोला कि वो, प्रधानमंत्री ने कहा कि वो तो खुद 20 सालों से झेल रहे हैं ये, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए जिस तरह से जो कंडक्ट था अपोजिशन का, वो बेहद निंदनीय है। क्या इससे पहले कभी मिमिक्री नहीं हुई बड़े पदों के लिए, प्रेसिडेंट के लिए या प्राइम मिनिस्टर के लिए? इससे पहले कभी नहीं हुआ। क्या आप लोगों के चैनल पे या अखबारों में कभी कार्टून नहीं छपे? ये तो एक मनोरंजन हो रहा था। अगर किसी ने मिमिक्री कर दी तो जब हमेशा से होती चली आई है, तो इसमें क्यों इतनी परेशानी हो रही? कहने की संवैधानिक पद है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट का, सभापति के लिए इस तरह की मिमिक्री क्यों, और वो भी पार्लियामेंट प्रीमाइसेस के अंदर? क्या प्रेसिडेंट के कार्टून नहीं बनते? वो तो उससे भी बड़ा पद है, सब पे केस कर देंगे, अखबारों पे केस कर देंगे।
किताबों पे केस कर देंगे ऑथर्स के ऊपर। तो मैं समझता हूँ मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। यह ऐसा मुद्दा था नहीं जितना कि उसको बनाया जा रहा है। एसटी सर, एक और बात, जिस तरह से पूरा मामला देखा जा रहा है, बीजेपी इसे जाट और किसानों का अपमान बता रही है, कह रही है कि अपोजिशन ने फिर से जाटों का और किसानों का अपमान किया है। इन्होंने तो पूरी जनता का अपमान कर दिया। जो सांसद आते हैं तकरीबन 20 लाख वोटर्स इन्हें भेजते हैं यहाँ पर, उनको इस तरह से बाहर कर देना ये तमाम जनता का अपमान है। क्योंकि ये समझते हैं कि अब राजतंत्र है, डिक्टेटरशिप है, माइट इज राइट है, जो ये करेंगे, जो कहेंगे वो सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन वो ये बात कह रहे हैं कि अपोजिशन को माफी मांगनी चाहिए, ये मामला इतना छोटा नहीं है। आज राज्यसभा में जितने भी एनडीए के एमपीज हैं वो चेयरमैन के लिए 2 मिनट के लिए खड़े होंगे उनके सम्मान में। तो ये जिस तरह से पूरा टर्नआउट हुआ है, कल्याण बनर्जी के वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री का जो कृत्य है, उसका जो टर्नआउट हुआ है इंसिडेंट्स का, उस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, हाइप दिया जा रहा है। सम्मान में तो श्रद्धांजलि में खड़े होते हैं, ये बिला वजह देश की आंखों में धूल झोंकना और गुमराह करना कि साहब इतनी बड़ी इंसल्ट हो गई और धंगर समाज की हो गई। क्या करा धंगर समाज के लिए? अब तक बेचारों के सर्टिफिकेट तक तो बन नहीं पा रहे हैं। मैं उठा चुका हूँ ये सवाल। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने जाटों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ पॉलिटिक्स की है? यकीनी तौर पे किसके लिए क्या कराए? आप लोगों के लिए क्या कराए जो आप लोग ढोल बजाते रहते हो? ये हैं सपा सांसद एसटी हसन। हर्षद सोनानी फॉर रिपब्लिक टीवी। We are joined by Congress Member of Parliament Syed Nasir Hussain. Nasir sir, so the entire opposition is protesting today, and there's a 4th day of opposition leaders protesting at Gandhi statue. What do you have to say? Because BJP is now raising the Kalyan Banerjee issue and asking for opposition leaders to apologize. See, what is the issue? Breach of security? Yes, sir. What is the issue? Security of the MPs? Who is the person involved? Is the BJP MP who has brought them? Is that issue more important, or is that issue or some other issue which is not actually concerns the members of parliament is the issue? They are very good at diverting the issues, diverting the attention from the main issue. It is very clear that more than 140 MPs have been suspended. This is how democracy has been derailed. This is how the voices of dissent has been crushed in this country. So all the MPs are protesting here for the past 4 days. We will continue to protest not only here, in different parts of our country. So this is Syed Nasir Hussain responding on the opposition protests and also on how BJP is diverting the entire issue. Harshad Sanwani for Republic TV.